Yeah. So now I start. This is the very first step after weighing all the raw materials. Raw materials means a resin, pigment, additives, filler, or any special additives are used. So after weighing all the material are put into a mixture, that is high speed disperser. I'll show that also. So then after mixing, homogenized mixing of dry form, it is put into this hopper. So there are 3 4 machinery being used. One is high speed disperser, HSD, then extruder. This is twin screw extruder. Then ACM. ACM means air classifying mill, that is used to make fine powder, right? So this, see, Hello. yeah, this is extruder. This is a driving main drive. और जो हमने पाउडर ऊपर डाला हुआ था प्री मिक्सर ऊपर हॉपर में, वो देखिए भी हम दिखाएंगे, वो नीचे आएगा ये. This is the hopper. I've showed the fine dry powder, and it comes through a conveying screw into this hopper. वो थोड़ा वीडियो दूसरी साइड डायरेक्शन में बना दिया है. ये देखिए, जो मेन एक्सट्रूडर है, एक्सट्रूडर का ये मेन बैरल होता है. बैरल में डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स होते हैं, जिसमें पानी एंड हीटर की वजह से हम सारा इसका टेम्परेचर, आई कैन एडजस्ट द टेम्परेचर वट एवर आई वॉन्ट. दिस इज अ मोल्टन मटेरियल कम्स आउट. ये देखिए एक्सट्रूडर का जो डिस्चार्ज एंड है, इसमें क्या होता है, 3 जोन होती हैं. दिस इज अ फर्स्ट जोन, सेकंड जोन एंड थर्ड जोन. दिस extruder barrel is divided into 3 zones. Third zone temperature we kept 30 to 40 degree only. Second zone temperature 80 to 90, and third zone temperature is around 100. This is a homogenized molten material coming out from the extruder. इसमें जितने भी हम पिगमेंट डालेंगे वो सब मिक्स होके एक सिंगल कलर बन जाएगा. जो भी रॉ मटेरियल है इसमें टोटल मिक्स हो जाएगा. आप लोगों को सर दिख रहा है ना? पहले जो ड्राई पाउडर था उसको मेल्ट कर लिया गया है ना सर आप लोगों एक्सट्रूडर को में? दिख रहा है ना? बिल्कुल. देन यस सर. ये, these are chilled rolls. ये one roll is here and another is here. A 5 degree chilled water is circulated into these rolls. So this molten material gets into a hard sheet form. ये जो टेम्परेचर यहाँ से जो मटेरियल निकल रहा है, हमने तो टेम्परेचर मशीन का रखा है 100 डिग्री, बट जो मटेरियल निकल रहा है इसका अराउंड 120 डिग्री हो जाता है टेम्परेचर, ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन से भी हीट जनरेट होती है. सो in between these chilled roll, this molten material gets in the form of hard sheet. मे बी इस वीडियो में ना हो, सेकंड वीडियो दिखाएंगे आपको आगे. ये देखिए, Sir, that means
यस प्लीज मिस्टर उत्कर्ष बोलिए। Sir, that means raw materials are means if we talk about the pigments, हाँ, then pigments are totally dispersed in the means resin, in the resin solution in by this machine. या बेसिक Yes, am I? this is as equal as liquid paint, but in liquid paint a solvent are being used, but here all the material means the pigment, filler, additives, they all get dispersed into a molten resin. Yes, sir. That means this is the work of what this machine called? I think extruders. Extruder. Then what is the work of high speed dispersion? I'll show that video also. That is the Okay, very okay, thank you. first machine. So now these chips in the form of sheet, this is coming. See, this is going into a kibler. Here the pins are there inside. They kibble. They make this sheet in the very small chips form. अभी देखिए नीचे दिखेगा आपको। चलिए इसमें नहीं है, दूसरा वीडियो है। इसमें देखिए थोड़ा सा आपको और क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन उसमें थोड़ा ठीक नहीं था। ये देखिए ये हाई स्पीड मिक्सर है। ये दिस इज वेरी सेम एज डोमेस्टिक जो किचन होती है ना, किचन में हमारे मिक्सी होती है, बिल्कुल उसी फॉर्म में होती है। इसमें जो भी मटेरियल है वो सब यहाँ से ऊपर से डाल देते हैं। ये वीडियो दिख रहा है ना आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से सारे मटेरियल हम लोग डाल देते हैं और इसमें नीचे मोटर होती है। मोटर से इसको बहुत ही हाई स्पीड पे अराउंड 2000 आरपीएम पर मिक्सिंग करते हैं, और मिक्सिंग होती है 1 से 1.5 मिनट की। वो मिक्सिंग के बाद में यहाँ से ये हॉस को खोल के मटेरियल यहाँ से निकाल लेते हैं और इसको ऊपर डाला जाता है इस हॉपर में। हॉपर से फिर ये एक्सट्रूडर में आ जाता है। पहले यहाँ पर आएगा, इसके बाद यहाँ पर कन्वेइंग होता है। जिन लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया होगा उनके लिए भी हम बता रहे थे। हेलो Sir, that means, हेलो सर। हाँ जी बताएं। सर मिस्टर मोहित, मिस्टर मोहित बोलिए। सर आपने कहा था एक्सट्रूडर में ये, हाँ सर आपने कहा था एक्सट्रूडर में 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक्सट्रूडर में तीनों का टेम्परेचर अलग अलग होता है। सर ये जहाँ से ये निकल रहा है मेल्ट होकर के, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। डिवाइड होता है, तीनों का टेम्परेचर अलग अलग होता है ना? हाँ तीनों, ये सर मे बी आप नेटवर्क तीनों का टेम्परेचर, मतलब इसमें हीटर लगे होते हैं। हाँ जो पैनल बोर्ड होता है उसमें हीटर को हम टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, तीनों जोन में अलग अलग। और इसमें सोलेनॉइड वाल्व लगे होते हैं। सर हाँ बोलिए। अच्छा जो सोलेनॉइड सर वाल्व, इसकी क्या कंडीशन होती है कि सर टेम्परेचर की कुछ कंडीशन होती है क्या कि पहले वाले बॉक्स पे इतना रखेंगे 30 to 40? कंडीशन होती है जो ये जहां पर मटेरियल इन हो रहा है हाँ सर वो बताएंगे। वो टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री रखेंगे। बीच में टेम्परेचर हम करेंगे 70 to 80 और डिस्चार्ज एंड पे 90 to 100। तो इसमें बीच में ये सर ऐसा क्यों करते हैं वैसे? पाइप में पानी सर्कुलेट हो रहा है और ये सोलेनॉइड वाल्व की वजह से और थर्मोकपल होते हैं उनसे हम इसका टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। मोनू जी एक मीटिंग ओके सर। अभी हम आपको करते हैं, जूम मीटिंग पे है।
जी मिस्टर मोहित बताइए, एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay, thank you. Sir, means a high speed mixture is used for means for the uniform mixture of the means raw material, Yes, the so that high the speed mixture should especially be is uniform. used to make a homogenized mixing, dry mix powder. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. But sir, if we talk about the mechanism of extruders, Uh, what is the working principle of extruder? Means it is done only by the means higher the temperature or by the shear force or other things. no, no, actually, this is. I will try to show you if I have a photograph. There are two screw. देखो, see here in video you can see this two moving portion, right? Are you able to see this moving portion? Sir. Uh, Yes, sir. Yeah. सर विजिबल नहीं क्लियर सर. So actually there are two screw from here to full length of the barrel, पूरा अंदर तक जाएगा, और वो स्क्रू की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें। मीन्स कुछ पेडल्स बोलते हैं इनको, स्क्रू में पेडल्स होते हैं, पेडल की वजह से पिगमेंट्स का डिस्पर्सन हो जाता है। देखते हैं अगर मेरे पास कोई वीडियो है। जैसे सर कहते हैं इफ यू मींस इन जनरल अगर हम लोग किसी चक्की की बात करें तो जैसे तेल की वो होती है, उसमें भी तो सर घूमते रहते हैं दो बीच बीच में। हाँ, जैसे तेल में भी उसमें कहते हैं शियर फोर्स उसको। स्पेलर होता है ना, जी। तो स्पेलर तो नहीं एग्जैक्टली कहेंगे। देखिए एक मिनट, हम देखते हैं अगर ऑनलाइन हम आपको दिखा पाए। चलिए इसको देख लेते हैं, अभी हम ऑनलाइन भी देखते हैं अगर आपको स्क्रू हम दिखा पाए वीडियो। ठीक है, ओके सर, श्योर सर। इसमें उतना नहीं स्क्रू आया। ओके, ये ब्राउजर आप लोगों को दिख रहा है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, यस सर। यस सर विजिबल. ये देख लीजिए, बेसिकली ये पूरी लाइन होती है जिसका हम एक फ्लो डायग्राम आपको दिखा रहे हैं।
ये देखिए एक फ्लो डायग्राम हमने बनाया हुआ है। इसमें ये प्री मिक्सर लेते हैं, प्री मिक्सर से मटेरियल को स्क्रू में आएगा, स्क्रू से ये एयर क्लासिफाइंग मिल में जाएगा। ये भी हम वीडियो ही में दिखाएंगे आपको। और नहीं, स्क्रू की इमेज नहीं आ रही है इसमें। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए इसमें थोड़ा सा पोर्शन आया है। हेलो सर, आई थिंक आई गॉट दैट। ये देखिए, ये पोर्शन देखिए, ये फोटो दिख रही है आपको? ये येलो वाली फोटो दिख रही है ना पिक्चर आपको? यस सर। यस सर, देखिए सो ये जो मटेरियल है यहाँ पर गिरेगा, देन कन्वेइंग, ये स्टार्टिंग में केवल कन्वेइंग स्क्रू होते हैं यहाँ तक। देन इसमें थोड़ा सा ये मिक्सिंग के लिए पेडल्स के एंगल डायरेक्शन हम लोग चेंज करते हैं। और देखते हैं अगर इसको हम थोड़ा और बड़ा दिखा पाए आपको। नहीं, फोटो बड़ी नहीं आ रही है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये एक्चुअली अलग अलग एंगल और होते हैं इसमें। देखिए ये पोर्शन, ये ज्यादा क्लियर है, ये देख पा रहे हैं आप लोग इसमें? स्टार्टिंग में तो ये यस सिंपली कन्वेइंग स्क्रू होता है, देन यहाँ पर इसके एंगल चेंज करके हम लोग मिक्सिंग जोन बना देते हैं। तो जितने भी मटेरियल है वो डिस्पर्सन के बाद में इस साइड से डिस्चार्ज हो जाते हैं। यस चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए हाई स्पीड डिस्पर्सर है ये। इसमें ऊपर से ये लिड होता है, लिड को हटाकर सारे मटेरियल डाल देते हैं। अभी देखिए इसको अंदर से भी दिखाएंगे। ये देखिए जैसे मिक्सी होती है ना, बिल्कुल सेम वही होते हैं। मिक्सी इसमें मटेरियल डाल के ये जो चिप्स यहाँ से शीट फॉर्म में था फिर चिप्स फॉर्म में आ गया। चिप्स को हम फिर आगे एयर क्लासिफाइंग मिल में ले जाते हैं जहां पर ग्राइंडिंग होगी इसकी। ये चिलर होते हैं, चिलर से हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं इसका। ये देखिए ये मेन ग्राइंडिंग जोन होता है। यहाँ पर भी एक हॉपर होता है जिसमें वो चिप्स डाल देते हैं, लेकिन इसमें क्या ऑटोमेटिक मशीन है ये। तो ये जो पाइप है, पाइप में थ्रू एयर ये कन्वेइंग हो रहा है इस चिप्स सारे, और यहाँ पर आकर ये ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग होकर ये मटेरियल ऊपर उठता है, न्यूमेटिक कन्वेइंग होती है इसमें। मशीन के पीछे में एक ब्लोअर होता है बहुत हाई स्पीड, जो कि सक्शन करता है। तो सक्शन की वजह से ये पाउडर यहाँ से ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाता है।
ये देखिए ये पाइप है, पाइप में जब मटेरियल, ये साइक्लोन पोर्शन बोलते हैं, एसी एयर क्लासिफाइंग मिल में ये साइक्लोन पोर्शन है। तो जब मटेरियल यहाँ पर गिरता है तो ये सीब है, लग जिस पार्टिकल साइज का हमें पाउडर चाहिए होगा उसको हम इसमें से पास कर देंगे। फिनिश प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगा, कोर्स पोर्शन यहाँ से निकलेगा, जिसको रीग्राइंड करेंगे हम। इस बीच में 140 मैस की एक सीब लगी होती है, ठीक है। और दिस इज डस्ट कलेक्टर, क्योंकि ड्यूरिंग ग्राइंडिंग सम पाउडर इज ग्राउंडेड फॉर लेस देन 10 माइक्रोन। वो न्यूमेटिक कन्वेइंग, ये जो पीछे ब्लोअर लगा हुआ है, देखते हैं अगर हम आपको क्लियरली दिखा पाए, तो ब्लोअर क्या हो रहा है, सक्शन कर रहा है। तो जो बहुत फाइन पाउडर है बिलो 10 माइक्रोन, वो इस डस्ट कलेक्टर में आके, इसमें फिल्टर बैग होते हैं, वो बैग के ऊपर आके चिपक जाता है। वो अंदर का पोर्शन तो नहीं दिखा पाएंगे आपको, ये देखिए पीछे ब्लोअर लगा हुआ है। हेलो सर। यस यस प्लीज। सर मुझे पूछना था हाँ कि पहले एक्सट्रूडर से हाँ, जो भी सर वो लिक्विड मटेरियल को सर उसमें शीट में कन्वर्ट कर लिया गया था, ठीक है। सॉलिड शीट में। हाँ शीट शीट हाँ को भी हमने फिर सर उसको स्मॉल इसमें स्मॉल पार्ट साइक्लोन चिप्स में मशीन में उसको क्रश किया गया। क्रश किया गया, तो स्मॉल चिप्स बन जाते हैं वो। अच्छा सर, ठीक सर। फिर सर उसके बाद उसको सर चिप्स को हम फिर छानना उसमें है। कन्वेइंग कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ चिप्स बन जाते हैं, और ये पाइप से हम कन्वेइंग कर रहे हैं मिल में। ये एक्चुअली हाँ ऑटोमेटिक हाँ, मशीन है। दूसरी मशीन हम देखते हैं, अगर वो ओके है सर। हमारे पास, उसमें आपको चिप्स फॉर्म दिखेगा। ओ- ये देखिए पूरा पाइप आ रहा है, न्यूमेटिक कन्वेइंग हो रही है ना। इसको ये वीडियो दिख रहा है ना आप लोग को? ओके यस सर। सर। यस सर। नहीं इसमें नहीं आया, मे बी इसमें हो। ये देखिए ऑटोमेटिक मशीन नहीं है। ऑटोमेटिक में क्या होता है, चिप्स ऑटोमेटिकली कन्वेइंग होता है, लेकिन इसमें मैनुअल डालना, फीडिंग कराई जाएगी। ये देखिए चिप्स दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। ये चिप्स आपको दिख रहा है ना? ये मैनुअल फीडिंग वाली मशीन है। तो इसमें चिप्स डालने के बाद, ये मिल है, ये ब्लू कलर की ये मिल है। मिल में ग्राइंडिंग होके ये सब ऊपर उठ जाता है पाउडर। ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसलिए यहाँ पे ये बकेट लगी हुई है, और इस ड्रम में पाउडर पहले इकट्ठा करके देन सीव कर देते हैं। ये मैनुअल प्रोसेस, ये ब्लोअर फैन है जो कि एयर सक्शन करता है, और न्यूमेटिक कन्वेइंग होती है पाउडर की। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? यस सर। ओके, यस सर। देन आई विल शो अ पाउडर एप्लीकेशन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक गन होती है,
जिसमें नॉर्मल जो 220 वोल्ट हमारे घर में आती है, इसमें एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है गन के अंदर, तो उससे हम इसको 90,000 वोल्ट तक कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे बहुत हाई चार्जिंग आती है, चार्जिंग आएगी रेजिन के ऊपर। ठीक है, सो इसमें 3 चीजें ये होती हैं, पाउडर डिलीवरी, एक तो चार्जिंग, पाउडर डिलीवरी और एयर सिस्टम, क्योंकि एयर और पाउडर को मिक्स करा जाता है। इसमें भी एक कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर पाउडर को हम डाल देते हैं और उसको फ्लूइडाइज करते हैं एयर प्रेशर से। ये देखिए, ये चैम्बर होता है, चैम्बर में पाउडर को और एयर को मिक्स करके हम फ्लूइडाइज करते हैं। देखिए ये सेटिंग कर रहा है, ये देखिए। तो जब हम ये गन में से ड्राई पाउडर निकलता है विद एयर, ठीक है, तो बेसिकली जो ये सबस्ट्रेट है जिसको हमें कोटिंग करना है, उसको वी कनेक्ट दिस टू द अर्थ। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक गन है, बिकॉज व्हाई इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक गन, कैन एनीवन से, एनी आइडिया व्हाई दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक गन? सर इसमें चार्ज डेवलप करते हैं, निगेटिवली चार्ज रेजिन होता है सर जो। एग्जैक्टली बिकॉज इसमें निगेटिव चार्ज आता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक गन बोलते हैं। और एक गन और होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम लोग प्रोटॉन गन बोलते हैं, बट वो बहुत ही कम यूज होता है। 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक गन यूज होती है। ये देखिए इसने पूरा कोटिंग कर दी है, बट दिस इज अ फिजिकल बॉन्डिंग ओनली। ठीक है, ये भी केवल पाउडर चिपक गया है टेम्परेरी, बट इस पूरी अलमारी को ओवन के अंदर रखेंगे, जब ओवन में डालेंगे देन दिस विल मेल्ट, पाउडर गेट्स मेल्ट, एंड वहां पर पाउडर पूरा क्योरिंग होता है। ये देखिए, ये तो केवल टेम्परेरी बॉन्डिंग हो रही है, अगर हम उंगली से हटाएंगे तो ये पाउडर हट जाएगा। ये ट्रॉली सिस्टम होता है, ट्रॉली से, क्योंकि बड़ा पीस है ये, तो इसलिए ट्रॉली से इसको ओवन में ले जाएंगे। ये देखिए ओवन में, ओवन के अंदर डाल के इसको टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हम। ये देखिए ट्रॉली अंदर कर रहा है। सर इसका पैकिंग शेड्यूल क्या रहता है? हाँ जी मोहित जी बताएं। सर इसका बेकिंग शेड्यूल क्या रहता है? बेकिंग शेड्यूल इसके अलग अलग होते हैं। देखिए, आपको इसका बेसिक रीजन का आइडिया है, क्या क्या रीजन होते हैं इसमें? सर आई थिंक 90% थर्मोसेटिंग रेजिन यूज की जाती है, जो पीवीसी नहीं। वगैरह जैसे। ये 100% थर्मोसेटिंग यूज किए जाते हैं। 90 नहीं, 100% थर्मोसेटिंग यूज होता है इसमें। बट बेसिक क्या होता है कि या तो प्योर इपॉक्सी, दूसरा है इपॉक्सी एंड पॉलिस्टर। देखिए हम आपको उसको एक स्क्रीन बनाते हैं, उससे बेटर आएगा। ये वर्ड वाली स्क्रीन दिख रही है आप लोग को, जो ओपन हो रहा है? यस सर, ओके। यस सर, यस। सो इसमें क्या है, देखिए जो डिफरेंट टाइप की हैं, वन इज epoxy and its hardener, right? Second one is epoxy and polyester. This is also called as hybrid. Third one is
pure polyester. This is different polyester resin. Basic is polyester resin and hardener is TGIC. Then polyurethane. Polyurethane means a polyester resin and isocyanate hardener, right? So these 4 types of resin are used. सर TGIC का फुल फॉर्म क्या है सर? Okay. ट्राइग्लिसराइल आइसोसाइनेयूरेट, ये आप नेट पर निकाल लीजिएगा. हाँ ओके सर, आइसोसाइनेट. यस, हाँ आइसोसाइनेयूरेट. यस सर. ठीक है, ये हो गया. अब ये तो रेजिन हो गया. इसमें जो टाइप्स ऑफ पाउडर है, ये बेसिकली क्या होते हैं? मैट, सेटिन, सेमी ग्लॉसी, ग्लॉसी, depending on the gloss value. Okay, gloss value at 60° head. Glossometer, you can understand na? हेलो, ग्लॉसोमीटर आप लोग समझते हैं? यस सर, टू मेजर द ग्लास. हाँ, देखिए आप लोग को हम कुछ यस सर. देखते हैं, शायद हमारे पास कुछ फोटो हैं. ये देखिए, ये ग्लॉसोमीटर है ना? ये आप लोगों को दिख रहा है ना? This is Yes, sir. Yes, indeed. this is thickness gauge. This is glossometer. Then this is impact tester. ये सारे टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट हैं. दिस इज पेंसिल हार्डनेस और ह्यूमिडिटी चैम्बर. दिस इज इरेक्शन कपिंग. ओके, सो मैट के लिए वैल्यू होती है 5 to 10. सेटिन के लिए ग्लॉस वैल्यू होती है 20 to 40. सेमी ग्लॉसी के लिए 70 to 80. यू कैन ऑल्सो नोट डाउन. एंड ग्लॉसी के लिए मोर देन 90. देन एक और कैटेगरी होती है सुपर ग्लॉसी. इसके लिए मोर देन 95. बिल्कुल मिरर इमेज होती है उसमें. ओके, सो अब बताइए, आप लोगों को कुछ यहाँ तक कुछ क्वेरी है? सर नो सर. सर ये थर्मो सेटिंग क्यों ज्यादा यूज किया जाता है? थर्मोप्लास्टिक नहीं यूज कर सकते क्या इस पे? नहीं, पाउडर कोटिंग में कैन यू गिव आइडिया अबाउट व्हाट इज थर्मोसेटिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक? सर आपके क्वेश्चन से ही निकालते थर्मोप्लास्टिक हैं. सर थर्मो सेटिंग बोलते हैं जिसमें सर ड्यूरिंग द क्योरिंग सर अगर कोई रिएक्शन होती है तो सर थर्मो सेटिंग की कैटेगरी में आते हैं. अगर सर कोई नहीं होती रिएक्शन वगैरह, सीधे मतलब डायरेक्ट क्योरिंग होती है. हाँ मिस्टर उदेश बोलिए जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग? यस सर, यही डिफरेंस होता है कि थर्मोसेटिंग वो कोटिंग होती है जिसमें क्योरिंग के समय केमिकल रिएक्शन से क्योर होती है, वो थर्मोसेटिंग होती है. और जो क्योरिंग के समय केमिकल रिएक्शन का यूज नहीं होता है, सिंपली इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट से ड्राई होती है, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कोटिंग कहते हैं. देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है.
बेसिक डिफरेंस इनका है ये है कि सर अगर Curing के बेसिक बाद- लेवल पे बात करें तो थर्मोसेटिंग मतलब क्योरिंग के बाद में जो थर्मोसेटिंग होता है उसको अगेन हम लोग मेल्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको क्योरिंग के बाद में दोबारा से Correct, मेल्ट कर सकते हैं हम लोग। उसमें मींस केमिकल प्रोसेस नहीं होता है, जैसे किसी ने बताया था बीच में, उसमें केमिकल प्रोसेस नहीं होता है, वो सिंपली मेल्ट हो जाता है, बस मेल्ट होके सेट हो जाएगा। पर थर्मोसेटिंग में पूरा केमिकल प्रोसेस होता है, सेट होएगा, इसको हम दोबारा से मेल्ट नहीं कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? यस सर। जी। यस सर। तो अब देखिए एक दो ये है, मतलब एक स्पेशल चीज है, ये हम आप लोग को दिखाना चाह रहे थे। ये बेसिकली क्या है कि इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। पाउडर कोटिंग करने के बाद उसके ऊपर डिजाइन बनाई जाती है। देखिए इसमें इसमें बेसिकली क्या है, जो ये शीट है ये ताइवान और चाइना से आती हैं। जो भी डिजाइन आपको बनानी है वो इस तरह की शीट वहां से अपना डिजाइन भेज के मंगवाना पड़ेगा। ये देखिए इसमें ये वाटर टैंक है, वाटर टैंक में शीट डाल दी जाएगी, देन इसके ऊपर एक एक्टिवेटर बोलते हैं, ये कोई केमिकल होता है, अभी फॉर्मूला नहीं बताते हैं क्योंकि चाइना से है। तो उसको डालने के बाद क्या होता है कि जो ये प्लास्टिक फिल्म है ये वाटर में सॉल्वेबल हो जाती है, और जो इस पर डिजाइन है वो फ्लोट करती है पानी के ऊपर। ये देखिए पूरा डिजाइन इस पे आ गया। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो बेसिक पाउडर है इसको सपोज आइवरी कलर हमने बनाया, और उसके ऊपर वुड ग्रेन भी इससे बना सकते हैं हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस से। इसको कोल्ड ट्रांसफर बोलते हैं इसको। जो भी फिल्म हमने डाली है उस पर जो भी डिजाइन है वो ऑटोमेटिकली इस पर ट्रांसफर हो जाएगी। आपने देखा होगा बहुत से आजकल जो लग्जरी बसेस होती हैं उसमें लाइट के या पैनल्स कुछ प्लास्टिक के लगे होते हैं, या कारों में भी डैशबोर्ड पे ये डिजाइन होती है प्लास्टिक के ऊपर, वो प्लास्टिक पे ट्रांसफर करते हैं, जिसको पाउडर कोटिंग में भी ट्रांसफर करा जा सकता है। अब आप लोग बताइए, अपना कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो। तो पार्टिसिपेंट ही बहुत कम है, 11 लोग हैं कुल। नो इशू, लेकिन अच्छा लगा आप लोग से इंटरेक्ट sir. करके।
यस सर, काफी इंफॉर्मेटिव था। बताइए आप लोगों को कोई क्वेश्चन है? क्योंकि ये तो अभी तो हमारा इंफॉर्मेशन अलग से थी। बेसिक आज का जो टॉपिक था पाउडर कोटिंग में प्रॉब्लम या सॉल्यूशन, कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मे बी आप लोग जो प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनको तो अभी बहुत आइडिया नहीं होगा, बट क्या आप लोग कोई इसमें जॉब में भी हैं लोग? यस सर, मैं जॉब में हूँ अभी। जी मिस्टर राहुल बताएं सर। सर बोल रहा हूँ जैसे क्या सर? पाउडर यूज करते हैं आप लोग या लिक्विड करते हैं? नहीं सर, मैं पाउडर यूज करता हूँ। करेंटली अभी मैं एंडोरेंस में हूँ। किस कंपनी में आप? एंडोरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ओके ओके। सर हमारे यहाँ जैसे कास्टिंग कोटिंग करते हैं हम लोग, कास्टिंग पे। तो सर उसमें पोरोसिटी का जो प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल वो तो सर पाउडर कोटिंग करने से पहले पता नहीं चलता कि ये पोरोसिटी की वजह से ये प्रॉब्लम आया है। तो हाँ। अच्छा, उसमें क्या कोई ऐसा है जो पाउडर कोटिंग से पता चल जाए कि पोरोसिटी का इसमें पोरोसिटी का प्रॉब्लम है? नहीं पहले तो नहीं पता चलता है, क्योंकि लेकिन सर क्या होता है बाद में कोटिंग के बाद क्या होता है, वो पिन होल टाइप का दिखने लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो पहले तो पता नहीं चलता है, लेकिन इसमें आप ये कर सकते हैं कि जिस सप्लायर से आप कास्टिंग ले रहे हैं उनको बोलिए कि उसमें कुछ टैबलेट्स डाली जाती है, कास्टिंग टैबलेट्स बोलते हैं, डिगैसिंग टैबलेट। तो जब वो कौन सी सर? डिगैसिंग टैबलेट बोलते हैं, कास्टिंग के पीस जब कास्टिंग बनाई जाती है तो लिक्विड मेटल में ही वो टैबलेट डाल दी जाती हैं, जिससे कि जो एयर ट्रैप हो रही है वो निकल जाएगी एयर सारी। हाँ, लेकिन सर वो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे सप्लायर्स होते हैं वो मानने को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो उस मानते बेसिस नहीं पे है। हम उनको कहते ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं ये आपकी प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं तो आप प्रिकॉशनरी एक काम और कर सकते हैं कि जो भी ये कास्टिंग के पीस हैं, अगर आप इसको पीटी करते हैं क्या, प्री ट्रीटमेंट? यस सर, पीटी हाँ करते हैं ना, पीटी करते हैं। हाँ पीटी करते होंगे ना। तो जब हाँ। जैसे जो भी पीटी केमिकल प्रोसेस हो जाता है उसके बाद आप इसको थोड़ी देर प्री हीट कर दीजिए, आइटम्स को ओवन में डाल के। नहीं होता है सर, हमारे यहाँ प्री हीट होता है सर। जी। पहले हमारे यहाँ ड्राई ओवन है। हाँ ड्राई ओवन सर हमारा 130 to 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, जो एयर ट्रैप है या पानी ट्रैप है पोर्ट आफ्टर के दैट हम अंदर, वो सब कोटिंग निकल करते जाएगा। हैं। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो पाउडर आप कौन सा यूज करते हैं, ग्लॉसी फिनिश या सैटिन या मैट? नहीं सर, ये हम एचआर यूज करते हैं। नहीं पाउडर की बात कर रहे हैं हम। पाउडर कौन सा, किस फिनिश में यूज करते हैं आप? सर पी ये पॉलिस्टर। हाँ, सैटिन में या मैट में? ग्लॉस लेवल मैट में सर। मैट में ना, ग्लॉस लेवल बिलो 15 होगा या बिलो 10 होगा। बिलो 50। हाँ बिलो ठीक है। 15 सर, बिलो तो 15। आप अपना जो पाउडर मैन्युफैक्चरर है उनसे भी बोल सकते हैं कि हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ा सा लो करके दीजिए, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो नॉर्मल पाउडर की आजकल चल रही कॉस्ट कटिंग के हिसाब से तो वो 1.6 हो रही है। आप उनको बोलिए कि हमें 1.5 के आसपास का स्पेसिफिक ग्रेविटी का पाउडर दीजिए। अच्छा, पाउडर सप्लायर तो सर अपना ये एक्सो नोबल से हम लोग लेते हैं। कोई भी हो। और एक्सो नोबल ये हमारा ईमेल एड्रेस है। उनसे। है ना, इस पर आप मेल हमें करिए, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए फॉर्मूला है या जो टेस्टिंग है वो हम आपको भेज देंगे।
ठीक है राहुल जी? ओके सर। हाँ, एक देखिए, अगर हम दिखा एक बेसिक हम दिखा देते हैं आपको, अगर थोड़ा सा आइडिया होगा। देखिए, एक तो पाउडर कोटिंग का ये आप लोग नोट कर लीजिए, जो आईएस स्टैंडर्ड है, दैट इज आईएस 13871। ये आप लोग या तो आईएसआई जो अपना बीआईएस है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वहां से परचेज कर सकते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, आईएस 13871 1993। इसको कोई बात नहीं, हम आपको अलग से भेज देंगे। आप हमें मेल करिएगा, हम आपको अलग से भेज देंगे। ओके। ओके, और कोई क्वेश्चन भाई? अभी तो 14 लोग हैं। कसके मुंह पे चाटा मारूंगी। जी, हेलो, हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग से, अपना नाम बताइए फिर क्वेश्चन पूछिए भाई। हेलो, यस। नमस्कार कुलदीप जी, घनश्याम बोल रहा हूँ। जी घनश्याम जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ घनश्याम जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ये अभी जो शुक्ला जी प्रॉब्लम बता रहे थे, हाँ, जी। एसबीटीयू से ही हूँ मैं, घनश्याम जी आपको बहुत फैकल्टी अच्छे में। जानते हैं हम। हाँ हाँ, आप प्रोफेसर, नमस्कार, कैसे हैं कुलदीप जी? आप प्रोफेसर है ना? हाँ हाँ, जी जी, बताइए। तो ये अभी जो शुक्ला जी बात कर रहे थे, जी यस सर, यस सर। कास्टिंग में जो पोरोसिटी की बात कर रहे थे, जी, एंड्योरेंस, क्या ये शॉक एब्जॉर्बर बनाते हैं, वही कंपनी है ना शायद? नहीं, इंडोरेंस का सर कई सारा ब्रांच है। कई वो कई हाँ, बिजनेस है। आप वो कहाँ उसमें पर एंड्योरेंस में?
ये मैं पुणे यहाँ औरंगाबाद में हूँ सर करंटली। औरंगाबाद में, हाँ। हाँ तो ये आप जो कास्टिंग यूज करते हैं, जी इसको क्या फिनिश किया जाता है? यस सर, सरफेस यस सर। फिनिश, हाँ बफिंग सरफेस किया फिनिशिंग होता है उसमें। बफिंग होता है? हाँ हाँ बफिंग। बफिंग होता है सर। एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, जब ये बफिंग करते हैं तो जो बफिंग केमिकल्स हैं वो पोरोसिटी के अंदर, पोरस पार्ट उसमें घुस जाते हैं वो, और वो निकलते नहीं। हम्म तो इस वजह से इनको एप्लीकेशन के टाइम पर उसमें बहुत फाइन माइक्रो पिनहोल से दिखाई देते हैं। प्री हीट करने के बाद वो नहीं आते हैं सर। और कई बार हमने मतलब एक्चुअली सर मुझे तो इसका कास्टिंग का तो कास्टिंग का इशू बहुत बड़ा है, ये हमने देखा इंडस्ट्री में। हेलो। हेलो राहुल जी, हम हाँ यस सर। एक चीज आपसे और शेयर हाँ करना चाह रहे हेलो। थे। हमने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि यस कई सर। बार पीस को अगर आप पेट्रोल या कोई थिनर से एक बार साफ कर देंगे तो भी वो पोरोसिटी क्लियर हो जाती है। जी लेकिन जी, सर हमारे यहाँ सर इससे भी फर्क लगभग पड़ता है। जी सर आप हमारे यहाँ पेंटिंग से लगभग पहले, अगर पाउडर कोटिंग से पहले ये करें तो भी जो बेसिक केमिकल्स हैं वो जो पोर्स में जो रह जाते हैं, जी यस सर। वो उसको आप निकाल निकाल सकते सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर हमारे यहाँ मैक्सिमम 10,000 पार्ट कोटिंग अच्छा होता है, हैं। तो जी जी उसमें जी ये नहीं जी, पता चल हाँ। पाता है अगर हम 10,000 पार्ट पे सर ये एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके बिल्कुल। पार्ट का साइज लेकिन ये कितना परसेंटेज आता है ऐसी प्रॉब्लम जो आपके आती ये है? सर महीने में क्या सर? नहीं, जिस टाइम आप एप्लीकेशन करते हैं तो एक ट्रॉली में सारे परसेंटेज पीस वाइज पे आता है या कितना कुछ पार्ट, एक्सटेंट है कुछ प्रॉब्लम का? पोर्शन में, हाँ या रैंडम आता है? नहीं सर, ये जैसे हमने अगर 100 पार्ट किया तो उसमें से 10 पार्ट 5 पार्ट इस बेसिस पे निकलते हैं। हाँ तो लेकिन आप वो अच्छा 10 पार्ट 5 पार्ट करके सर मंथली में जब महीने में हमारा एमआरएम होता है तो उस जगह जी पे हमारा जी। जाके बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है। उसको रीवर्क करना अच्छा, पड़ता इसको होगा। अगर आप रिवर्क करते हैं तो क्या होता है? हाँ रिवर्क करना पड़ता है सर। तब ये प्रॉब्लम आती है क्या? नहीं रिवर्क करने के लिए सर हम पहले उसको तो या तो स्ट्रिपिंग केमिकल से स्ट्रिपिंग क्लियर करना करते हैं होगा, या स्ट्रिपिंग करना होगा। तो स्ट्रिपिंग करके क्लियर करते हैं नहीं या तो राहुल फिर जी, सैंडिंग करके स्ट्रिपिंग सर से, टचअप करते हैं, दोबारा स्ट्रिपिंग, रिकोटिंग नहीं करते हैं। हाँ स्ट्रिपिंग से बेटर दो हम्म चीज हैं जो आपने एक अभी बिल्कुल बहुत सही बोला, टचअप कर दिया। या आप क्या करिए, उसको हैंड ग्राइंडिंग से जिस पोर्शन में पिनहोल है, हैंड ग्राइंडिंग में उसमें एमरी पेपर लग के और उसको हल्का सा रबिंग कर दीजिए। हाँ तो उसके बाद जब उसका कोटिंग करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर वही करते हैं सर, जब टचअप करते हैं तो डायरेक्ट ऐसे टचअप नहीं करते, पहले उसको 180 या 320 पेपर से सैंडिंग करते हैं। हाँ जी जी जी, सैंडिंग करके फिर आप करिए। ओके सर। या ओके एक ओके चीज थैंक यू और सर। कर सकते हैं कि अगर आप नोट करें किसी पर्टिकुलर एरिया में तो नहीं आता है ऐसा, अगर ऐसा आता है तो वहां नहीं पे नहीं, बफिंग आप कर ये सकते हैं। नहीं घनश्याम जी ऐसे कहीं पे भी आ पर्टिकुलर एरिया सकता में है। नहीं है सर, मतलब वो कभी किसी भी जगह पे आ जाता है। हाँ ये अच्छा, कभी कहीं पे भी आता है। और हाँ ज्यादातर ये जो ब्रेक नहीं लीवर वो होते तो हैं, बात आपकी सही है। टू व्हीलर के जो ब्रेक ब्रेक लीवर हैं, उनमें भी काफी हाँ दिक्कत आती है। जी 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 जी। ये टू व्हीलर के सर एक्चुअली क्रैंक केस में ज्यादा ये प्रॉब्लम आता है। हाँ ये जहाँ पर हैं शुक्ला जी, औरंगाबाद में, मैं वहीं बजाज ऑटो में ही काम किया हूँ कई साल, 14 साल अच्छा करीब। अच्छा, जी जी जी। तो एंड्योरेंस एक अच्छा सर, सप्लायर अच्छा रहा सर। है हमारा। हाँ, एंड्योरेंस हाँ हमारा हाँ सर सप्लायर वो रहा है। हाँ ये टू व्हीलर के हाँ लिए सर, हम टू व्हीलर के लिए हम देते हैं आपको, क्रैंक हाँ केस दिया हाँ करते हैं। हाँ हाँ। तो ये रहा है, पहले हम लोग वहाँ पर उन्हीं से ही करके आता था। और भी जो सप्लायर हैं, कई और भी हैं, एम्बेडेड हम्म, वगैरह हुआ करते थे, पता नहीं अभी है कि नहीं अभी। हम्म। तो कुछ चीजें वहां से भी पाउडर कोटिंग होती थी। चले, आपका तो भी एक्सपीरियंस काम आया आज। कास्टिंग उसमें हमने कभी सर, बिल्कुल सर। क्योंकि हम लोग पाउडर कोटिंग अपने से नहीं किए, इसीलिए ये चीज जो है हाँ जी ज्यादा उससे संपर्क में नहीं आए हाँ क्योंकि सर पाउडर से। मैं अपने पिछले कंपनी में
था तो बजाज थ्री व्हीलर हाँ भी ये करता था, जी वहाँ पे एक बजाज के हुद्दार सर थे। हाँ, हुद्दार मालूम है, हुद्दार काम कर चुके हाँ हैं हमारे हुद्दार, साथ। हाँ तो उनसे उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता था। वो हमारे पहले हम सीट मेटल में थे सर, हाँ हाँ लक्ष्मी ग्रुप था नाहर इंजीनियरिंग, थ्री हाँ व्हीलर के हाँ लिए हाँ, सप्लाई करता था। जी 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 जी, हुद्दार तो चैसी उसमें, शॉप में हुआ करते थे। हाँ चेचिस शॉप में सर, हाँ, तो वो थ्री कभी व्हीलर में कभी आते थे। काम किया है मैंने, थ्री व्हीलर और मोटरसाइकिल दोनों में काम किया है। हाँ, तो वो सर वो आते थे तो ऑडिट ऑडिट पे के टाइम पे आते थे, तो वो मतलब उनसे पता पूछता था। उस टाइम पे कास्टिंग डिवीजन में मैं नहीं था, जी मैं जी सीट मेटल में था, तो जी सीट जी मेटल पे तो इतना ज्यादा मतलब हाँ, प्रॉब्लम नहीं था। जी, लेकिन अभी शीट मैंने मेटल में नहीं रिसेंटली, आती है, कहाँ आप सही कह रहे हैं, सीट मेटल में ये कास्टिंग में ये प्रॉब्लम आता ही प्रॉब्लम। नहीं था। हाँ हाँ, हाँ, तो कास्टिंग में ही सर ये प्रॉब्लम मेरे लिए पहले मतलब फर्स्ट टाइम इस तरह का प्रॉब्लम मैंने फेस किया था। हम्म। और अगर हाँ, 10 तो वही मैं, परसेंट तक तो ये काफी बड़ा रिजेक्शन है वैसे, अगर आप देखें। बहुत बड़ा रिजेक्शन है सर, बहुत बड़ा है। ओके। लेकिन और ये जब ये और एक्यूमुलेट हो सप्लायर जाता है तो बहुत एक्सेप्ट बहुत करने को मुश्किल भी होता है। तैयार नहीं होते। हाँ, नहीं ये दिखाना होगा आपको, सप्लायर उनको भी थोड़ा एक्सेप्ट करने सा के लिए तैयार नहीं नहीं आप होते। उनको दिखाना होगा राहुल कि जी, जो ये पाउडर कोटिंग के प्रॉब्लम है। जो पाउडर आपके सप्लायर हैं, आप उनसे स्पेसिफिक ग्रेविटी पे थोड़ा बहस करिएगा, तो वो जरूर उनको चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या रोल है, यानी हमारा रीजन पोर्शन उसमें हम ठीक है सर। इंक्रीज करेंगे। जैसे ही रीजन पोर्शन हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी डाउन हो जाएगी और फ्लो बेटर हो जाएगा। हम्म। या फिर जो पाउडर में भी डिगेसिंग एजेंट डाला जाता है, या वो थोड़ा सा डिगेसिंग एजेंट इंक्रीज करेंगे, एज ए एडिटिव होता है। अच्छा, दो चीज ये अच्छा, हमारे, पाउडर कोटिंग में भी आप ऐड करके कर सकते हैं। जी जी, ये दो चीज हमारी छूट रही थी। अच्छा देखिए, ये ग्लॉस लेवल के हिसाब से तो हमने जी मैट, सेटिन, सेमी ग्लॉसी, ग्लॉसी, सुपर ग्लॉसी बता दिया। एक टेक्सचर जी फिनिश एंड स्ट्रक्चर फिनिश भी होती हम्म है। ये फिनिश वाइज होता है। हम्म। कुछ आइडिया है आप लोग को टेक्सचर और स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। जो टेक्सचर फिनिश है, ये दिस इज एमरी पेपर फिनिश, बिल्कुल रफ, एकदम इस कांटे सी, जो बिल्कुल मतलब एमरी पेपर जो होता है वो फिनिश बन जाती है। और स्ट्रक्चर में ये रिंकल फिनिश है। अच्छा ये जो मिस्टर महेश थे अभी पहले, अभी पता नहीं अभी हैं कि नहीं है इस टाइम लाइन पर, तो उन्होंने बताया था वो लोग, ये इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के ऊपर जो किया जाता है रिंकल फिनिश ये वगैरह जो है, रिंकल बेसिकली कुछ जो पैनल बोर्ड है, पैनल बोर्ड के ऊपर ये करा था, इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड। हाँ हाँ जी 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 जी, उसके ऊपर कुछ जो आप देखें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हैं उसके जी ऊपर भी, उनके सर्फेसेस के ऊपर भी किया जाता है जहाँ पे पैनल लगा होता है, हाँ जी 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 जी, स्विचेस वगैरह मैक्सिमम ये लगे होते रिंकल हैं। फिनिश चलता है। और इसमें भी इंटरनेशनल शेड कार्ड है, रेल जी 7032, दिस इज सीमेंस ग्रे हम्म स्ट्रक्चर, या एक टेलीग्रे स्ट्रक्चर और होता है रेल हम्म 7035। ये दोनों पैनल बोर्ड में शेड चलते हैं, ये फिक्स शेड हैं, यही दोनों चलेंगे चाहे स्ट्रक्चर में हो या स्मूथ सेटिन फिनिश में। पैनल बोर्ड में मैक्सिमम यही चलता है। अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे कुलदीप जी कि ये जो एल्यूमिनियम पिगमेंट जो यूज करते हैं हम लोग हाँ जी, पाउडर हाँ जी कोटिंग में, जी, क्या इससे कोई प्रॉब्लम आती है? इससे केवल एप्लीकेशन के टाइम पर दिक्कत आती है, क्योंकि देखिए हमारे जो गन है, जो पाउडर हमने जी हॉपर में डाला है और वो विद पाउडर एयर मिक्स होके वो गन में से पास होता है। गन में जी स्टार्टिंग में एक्चुअली अभी हमारे पास वो फोटो नहीं है, तो इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं, गन के जो नोजल होता है उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं सर। तो अगर हम गन में चार्जिंग 20 किलो वोल्ट बिल्कुल, से, नोजल में सेंटर में लिक्विड होता है, हाँ हाँ होता है सेंटर में रॉड होता है, जी। तो अगर उसकी हम जो तो वोल्टेज है जैसा चार्जिंग, लिक्विड बेंट में होती है गन वैसा ही होता है। हाँ लगभग वैसी सी होती है। हाँ तो इसमें जो हम गन की जो वोल्टेज सेट करेंगे, अगर वो 40 किलो वोल्ट से ज़्यादा रखेंगे, तो अच्छा चार्जिंग की वजह से क्या होगा, जो पाउडर में, क्योंकि एल्युमिनियम की फिजिकल ब्रांडिंग होती है बस, हाँ हाँ तो वो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चिपक जाते हैं और उनको शॉर्ट कर देते हैं, यानी थोड़ी देर में चार्जिंग आना बंद हो जाएगा, आपको जी पाउडर नहीं चिपकेगा। अच्छा, तो उसके लिए तो मेटल, सोल्यूशन क्या है?
मेटल के कोई भी पाउडर हो, आप उनको 30 किलो वोल्ट के आसपास रखिए, मिनिमम पे रखिए बस। अच्छा अच्छा। और अगर कभी आपको ऐसा हुआ कि भाई क्योंकि पाउडर, हमने देखा है मोटरसाइकिल वगैरह में, आप देखें तो जो चेन कवर वगैरह होते हैं मोटरसाइकिल में, इसके ऊपर पाउडर कोटिंग में मेटालिक यूज किया जाता है। वो तो स्पार्कल से होते हैं, केवल पर्ल होता है वो। अच्छा चेसिस अच्छा पे भी अच्छा। होता है, आजकल गाड़ियों पे भी आ रहा है, लिक्विड में भी पर्ल, व्हाइट पर्ल या ग्रे पर्ल, इस टाइप से होता है metallic। लिक्विड में तो आ रहा है, लिक्विड में हाँ तो जी। काफी टाइम से आ रहा है। तो ये चेन कवर जो होते हैं मोटरसाइकिल के, उसके ऊपर पाउडर कोटिंग जो होती है उसमें मेटालिक यूज करते हैं पिगमेंट। हाँ, करते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन यही है कि जो भी, अगर मेटेलिक पाउडर आप यूज कर रहे हैं तो वोल्टेज को कम से कम चार्जिंग पे रखिए। अच्छा और इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चार्जिंग बीच में बंद हो गई है, तो गन को खोल के पूरा साफ करना पड़ेगा। साफ करने के बाद आपको फिर चालू अच्छा। करेंगे तो चार्जिंग आ जाएगी। हम्म। अच्छा। जी। और एक चीज कुलदीप जी, कुछ लिमिटेड कलर्स ही हैं जो पाउडर कोटिंग में यूज होते हैं, ऐसा क्यों, कोई खास वजह? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर, सारे कलर यूज होते हैं। कहाँ से? ज्यादा देखें तो सबसे ज्यादा ब्लैक यूज होता है, सबसे ग्रे ज्यादा? यूज होता है। नहीं, ज्यादा जो सरफेसेस के ऊपर पाउडर कोटिंग हम लोग देखते हैं वो हम्म, ब्लैक या ग्रे, यही ज्यादा यूज होते हैं नॉर्मली। नहीं सर, नहीं। और भी कलर्स हैं लेकिन ये ज्यादा यूज होते हैं, कोई खास वजह है? हाँ, ये बात जरूर कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम, मतलब अगर जैसे अगर हम आज की बात करें तो 10,000 टन अगर पाउडर महीने में बन रहा है सपोज इंडिया में, जी। तो उसमें से 3,000 टन ब्लैक ही होगा, चाहे वो ब्लैक मैट हो या ब्लैक ग्लॉसी हो। हम्म। लेकिन कलर सारे होते हैं, वाइट होता है, ग्रे होते हैं, येलो, ब्लू, सारे, बहुत पिगमेंट तो रेंज बहुत बड़ी है, सारे यूज होते हैं सर। अच्छा, ग्लॉस लेवल अगर आपको इंक्रीज करना हो तो उसके लिए क्या इसके लिए रेजिन पोर्शन मेजर्स, बढ़ाना पड़ेगा उसमें, कुछ एडिटिव? और वो फिलर भी तो है, डिफरेंट यूज रीजन है। होंगे, फिलर भी। और फ्लो भी कुछ, फ्लो को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। नहीं नहीं, ये जैसे अगर हम मान लीजिए ग्लॉसी की बात करेंगे, तो इसमें बेरियम सल्फेट यूज होगा हाँ। एज ए फिलर, अच्छा प्रेसिपिटेटेड, वो भी केमिकल प्रोसेस से अच्छा। बना होता है। और अगर हम जी मैट की बात करेंगे तो यहाँ जी पर जी। बेराइट, हाँ, नेचुरल बेराइट यूज होगा, नेचुरल ऑफ पेराइट्स। कलर यूज होगा, या फिर सुपर स्नोवाइट, SSW। अच्छा अच्छा। जी। तो यहाँ पे भी यही बेराइट यूज होगा, सेमी ग्लो, ये तीनों में बेराइट ऑफ कलर या SSW यूज होगा। लेकिन ग्लॉसी में हमें बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेटेड ही लेना पड़ेगा, जो केमिकल प्रोसेस से बनता है, जी अदरवाइज ग्लॉस नहीं आएगी। और प्लस अगर हम जैसे फॉर्मुलेशन की बात करें तो जब हम मैट में करते हैं तो यहाँ पर हमारा हम्म। रेजिन 50% तक लेते हैं, हम्म। सेमी ग्लॉसी तक 50% तक रेजिन में हमारा काम हो जाता है। लेकिन जब हम ग्लॉसी पर आएंगे तो ग्लॉसी में हमको थोड़ा रेजिन पोर्शन बढ़ाना पड़ता है। रेजिन हम 55 to 60 लेंगे, परसेंटेज ऑफ रेजिन, अच्छा। परसेंटेज ऑफ रेजिन बढ़ाना पड़ेगा सर। हम्म। इवन सुपर ग्लॉसी में, अच्छा, ये अभी जो आप दिखा रहे थे डेमो, हाँ, प्लीज इवन प्लीज सुपर ग्लॉसी में प्लीज हमें कंटिन्यू। रेजिन पोर्शन सुपर ग्लॉसी में क्या करेगा? 70% तक जाना पड़ेगा। 70%? जी, अच्छा अच्छा। बिल्कुल एकदम ऑरेंज पील नहीं आएगी इसमें। ये एक जो अभी आप दिखा रहे थे डेमो, जो, हाँ, डेमो जो दिखा रहे थे अभी, जो फिल्म ट्रांसफर वाला, तो जी जी इसको जी। पाउडर कोटिंग पे किस स्टेज पे ट्रांसफर करते हैं? पहले तो पाउडर कोटिंग फिल्म वेट क्योर हो कर तभी लेते हैं। क्या? नहीं, ये 2 स्टेप प्रोसेस है सर। अच्छा, क्यों? हाँ, पहले पाउडर अच्छा। कोटिंग क्योर कर दी जाती है, कोटिंग करने के बाद क्योरिंग हो जाती है, पीस को हाँ फिर से, जी। मतलब उसको इसमें डालते हैं पानी में। अच्छा अच्छा।
और इसमें दो तरह से प्रोसेस होता है, जैसे ये तो कोल्ड तो ट्रांसफर ये तो होगा। किसी भी सरफेस के ऊपर फिल्म ट्रांसफर हो सकता है ना, ये तो। हाँ, इसमें सर वही जी हम बोल जी रहे थे, दो प्रोसेस होता है। एक तो ये जैसे पानी में किया, इसको कोल्ड ट्रांसफर बोलते हैं। ये किसी भी सरफेस पे कर सकते हैं आप, इवन जी वुडन लकड़ी पे भी कर सकते हैं। लेकिन जी। जब हम एक इसमें हॉट प्रोसेस होती है, वो केवल मेटल और ग्लास के ऊपर कर सकते हैं। अच्छा जी, उसमें हमें पीस के ऊपर ये जो प्लास्टिक जैसे दिखाई थी इन्होंने ट्रांसफर वाली, इसको फिक्स करके देन दोबारा ओवन में डालना जी। पड़ता है। अच्छा, वो हॉट तो ये ट्रांसफर क्या फिल्म के ऊपर एडहेसिव रहता है? फिल्म के ऊपर। ये एक्चुअली जैसे आप बच्चे टैटू लगाते हैं ना, सर हाथ के ऊपर टैटू बना लेते हैं, जी 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 वही चीज जी होती है। जी जी। हाँ, वो जैसे वही डिकैल जैसे होता है ट्रांसफर, हाँ, वही। लेकिन ये थोड़ा परमानेंट होता है। अच्छा, नहीं वो परमानेंट होता है वो चीज, मतलब प्रोसीजर वही है ना, जैसे डिकैल जो ट्रांसफर इंक्स वगैरह होती है, प्रिंटिंग इंक्स। जी जी जी, वही सेम सेम चीज है सर। हाँ हाँ। और लोग भी कुछ पूछिए क्वेश्चन अगर हो तो। हम और घनश्याम जी तो और आप राजीव जी लगे हुए हैं। आप सर प्लांट भी सप्लाई करते हैं या मटेरियल, नहीं, हम प्लांट और मटेरियल दोनों सप्लाई? नहीं सर, हम लोग प्लांट सप्लाई नहीं करते हैं। हम लोग केवल अच्छा, प्रोजेक्ट का मतलब पूरा इसका टर्न की ये अपना कंसल्टेंसी। फॉर्मुलेशन और जो टेक्निकल चीजें वो अच्छा हम लोग ट्रांसफर कराते हैं आपको। प्लस मेरी एक दूसरी अच्छा कंपनी अच्छा। और भी है, टॉरेक्स केमिकल, जिसे हम लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। प्लांट के अच्छा लिए हम जो मैन्युफैक्चरर है उनसे आपको मिलवा देते हैं। अच्छा। एक कंपनी हुआ करती थी मित्सुबा करके, वो अभी भी है? हाँ बिल्कुल है, ये गन गन वगैरह बनाते हैं वो। जी 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 जी। बिल्कुल है, बॉम्बे गन और बेस्ड है सर। छोटे बूथ। हाँ हाँ, छोटे बूथ वगैरह ये सप्लाई करते जी हैं, जी जी। गन्स और। हाँ मित्सुबा एंड रेड लाइंस, एक्चुअली बेसिकली पहले अमल शाह जी की रेड लाइंस थी, फिर वो पार्ट अलग अलग होके उन्होंने मित्सुबा एंड रेड लाइंस जी। दो कंपनी कर ली। अच्छा अच्छा। कुछ लोगों ने शायद लेट ज्वाइन किया, तो अब पता नहीं कितना हेल्पफुल होगा उनके लिए। फिर भी अगर कुछ भी क्वेरी है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, ऑर्गेनिक कोटिंग के ऊपर पाउडर कोटिंग अवेलेबल है? किस चीज पे सर? ऑर्गेनिक कोटिंग। ऑर्गेनिक कोटिंग? ये पाउडर कोटिंग तो ऑर्गेनिक हाँ, कोटिंग ही होती है। नहीं नहीं, ऑर्गेनिक कोटिंग सरफेस है, जैसे हेंकल के पास एटोफोरेटिक है, ओके, नहीं तो उस उसके टाइप ऊपर के पाउडर कोटिंग। नहीं 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 नहीं। वैसे ये मतलब जैसे केमिकल, जैसे एनोडाइजिंग वगैरह की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं नहीं सर, ये एटोफोरेटिक कोटिंग है, जैसे ईडी कोटिंग रहते हैं ना, जी एक्रेलिक या सीडी कोटिंग, कैथोडिक। ठीक है। हेलो। हाँ, पाउडर कोटिंग में कैथोडिक इलेक्ट्रोड डिपोजिशन सीईडी कोटिंग जो होती है, उसके ऊपर पाउडर कोटिंग हो जाती है सर। बराबर है, आजकल बहुत सी कंपनियां हैं जो उसी के जैसा ये कोटिंग है सर, हेंकल का। सीडी के ऊपर, सीडी प्राइमर के ऊपर पाउडर कोटिंग बहुत सी कंपनियां कर रही हैं सर। हाँ सर, लेकिन ये हेंकल का जो कोट है, एटोफोरेटिक कोट, जी, ये उसके ऊपर पाउडर कोटिंग पॉसिबल है क्या? मतलब आप वो बात कर रहे हैं जैसे अल्युमिनियम है उसको हमने कॉपर बना दिया, उसकी बात करना है? ना 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 सर, ये ऐसा है कि ये वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ओके। और आयरन रिप्लेस करता है पिगमेंट के साथ में। नहीं सर, देखिए जो फ्लोरोसेंट पिगमेंट रहता है बाद में अंदर। हम समझ गए आपकी बात। पाउडर कोटिंग के लिए सर पहली कंडीशन ये जरूर है कि इसकी हाँ क्यूरिंग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए होता है।
अच्छा। तो अगर कोई भी चीज यानी कोई भी सबस्ट्रेट जो कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड अगर विदस्टैंड नहीं करता है, उसके ऊपर एक तो पाउडर कोटिंग नहीं होगा, प्लस अगर वाटर बेस के ऊपर आप पाउडर कोटिंग करेंगे तो जब क्योरिंग के लिए हम लोग जाएंगे तो नीचे से एडेजन पुअर हो जाएगा, ब्लिस्टरिंग आ जाएगा सर। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ओके। इसका क्योरिंग ही तो ये 200 जो उनका कहना ऐसा है, जी उनका कहना ऐसा है कि ये जो हमारा ऑर्गेनिक कोट जो है ये वाटर सस्पेंडेबल है, बराबर, इन द जी बाथ, लेकिन जब ये डिपॉजिट होता है कंपोनेंट के ऊपर जी तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहता है। अब यही देखना है कि सर उसके जो कोटिंग का एडिशन है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो वी कैन इजिली यूज, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। ओके जी ओके ओके ओके। मतलब बेसिक क्राइटेरिया यही है कि बेसिक कोट जो रहेगा प्राइमर कोट ये आपका 200 डिग्री स्टैंड करने वाला चाहिए 30 मिनट बिल्कुल के बिल्कुल लिए। बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल है ना सर, जी चलेगा चलेगा, मेरे को समझ में आ गया। जी लेकिन एक चीज पूछना चाहेंगे सर, जो ऑटोपोरेटिक कोटिंग जो है इसके ऊपर, ये तो अपने आप में कंप्लीट कोटिंग है, सिंगल कोट, इसके ऊपर कोटिंग करने की, रिपोर्ट करने की जरूरत है क्या? डेकोरेटिव पर्पस, ये सीडी जैसा है ना सर। नहीं वो बात सही है सीडी को आपकी। घनश्याम जी, सीडी का घनश्याम जी कैसा है, जितना ग्लॉस आता है ना उतना ही ग्लॉस उसका रहता है, लेकिन डेकोरेटिव पर्पस के लिए उसमें टॉप कोट लगाना जरूरी हो जाता है। अगर आप नहीं चाहते अंडर बॉडी कंपोनेंट को तो जरूरी नहीं है, ऐसा है। घनश्याम जी हम लेकिन सीडी normally के जो हमने हुए सारे देखा है कंपोनेंट कि को थोड़ी टॉप कोट ऑटोपोरेटिक होता है, कोटिंग, अंडर बॉडी को होता ही नहीं। ऑटोपोरेटिक, हाँ घनश्याम जी ऑटोपोरेटिक के बाद नॉर्मली हमने देखा नहीं है कि उसके ऊपर टॉप कोट करते हैं। जी 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 नहीं है। अपने 30 ईयर के कैरियर में हमें एक बहुत अच्छी चीज के भी देखने को मिली थी। मुरादाबाद में एक कस्टमर था जो कि वो लोग डेकोरेटिव के एक्सपोर्ट के लिए लालटेन बनाते हैं। लालटेन को वो क्या करते, लालटेन को करते थे वो पहले एसिड में डिप कर देते थे, डिप करके उसको निकाल के 5-6 घंटे के लिए छोड़ देते थे उसमें। जब वो रस्ट आ जाता है, रस्ट को फिर यूनिफॉर्म रिमूव नहीं करते थे, कहीं कहीं से रिमूव कर दिया और उसके ऊपर फिर क्लियर कोट कर दिया। वेरी ब्यूटीफुल डेकोरेटिव आइटम बनता था वो। बट व्हाट अबाउट लाइफ? नहीं लाइफ तो रहती थी सर, क्योंकि जो टेम्परेरी बॉन्डिंग है वो तो कपड़े से वो हटा देते थे जो पाउडर फॉर्म में हो गया, लेकिन जो रस्ट मेटल के रह गई, हाँ लाइफ ये जरूर है, जो नॉर्मल लाइफ है उससे तो कम रस्ट जो है ट्रोजन है आगे, हाँ ये तो है कि रस्ट अगर आप छोड़ दी तो वो आगे चल के तो है वो स्प्रेड हो गई। जी 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 कोटिंग करने के बाद थोड़ा स्लो हो जाता है बट स्प्रेड तो होगा। देखिए सर टाइम भी ओवर हो रहा है लगभग, और अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी है सर, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पर प्लीज हमें ईमेल ड्रॉप करिए और हम उसका आपको सोल्यूशन दे देंगे। हेलो हेलो, एक बार हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे अपना अनम्यूट कर लीजिए। और जैसा आप लोग देख ही रहे हैं आजकल ये पेंडेमिक जो चल रहा है कोरोना का, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को सेफ रखें, और आप लोग भी प्लीज
मास्क वगैरह लगा के रखिए। आज तो हम लोग घर में ही थे। तो जल्दी फिर देखिए हम और भी नए टॉपिक पे हम लोग गेट टुगेदर रखते हैं इसी तरह सा। थैंक यू आप लोग का सपोर्ट जो आज आप लोगों ने दिखाया। थैंक यू।